Dear students, good morning. Today we have with us Dr. Kaushal Pandya. Uh, he is the alumni of our college, and after doing BSc in biotechnology from our college, he did his masters from MS University of Vadodara. Thereafter, for some time, he was there at International Council for Genetic Engineering and Biotechnology, that is also known as ICGB. Thereafter, he joined ACTRACT Mumbai. A few of you might be knowing that that is a very active research center for cancer. Then, as he was having a strong inclination for teaching, and that was reflected from the times when he was doing undergraduation at our college. So he joined Akash. You might be knowing Akash Institute. It's a big name in coaching. Then he joined Allen. Thereafter, he joined the Sri Chaitanya classes. It's a comparatively big name in South. So for almost 3 to 4 years, he was with Sri Chaitanya classes. And then, he started his own initiative that is known as Scholars Forum. So he, along with his friends, he founded this particular Scholars Forum, which is preparing students for NEET, NTSC, and other things. And we are very much fortunate and privileged that when I asked Kaushal that will you be able to spare your expertise with our students because they are also preparing for entrance examination. So he gladly accepted our invitation as a kind of support to the juniors or the super juniors of the college. So for that, on behalf of the NV Patel College of Pure and Applied Sciences and on behalf of Entrance Exam Preparation Cell and all its participants, I thank Kaushal Pandya for this particular support and sparing his expertise with all of us. So today he is going to have a session on cellular respiration, and without taking much of your time, I now request Kaushal to take over, please. Thank you, sir. Thank you very much. Uh, it's always a pleasure to come back to college. Maybe it is a virtual way to connect with our juniors, and we are grateful to all the teachers like Amit sir was there, Kundan sir, Madhu ma'am, and Yashna ma'am, that they made every possible thing to make to reach at to allow us to reach at the level where we can take off, from where we can take off anywhere. So it's all their efforts, and we were also part of EPC. We used to study in EPC, so it's like full circle coming back. So we are thankful to all the faculties of NV Pass, and let's start the session then without any further introduction. ठीक है, आप लोग सभी रेडी हैं? आप सभी को मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? You can reply in the chat box, okay, so that it won't disturb any other student. आप लोग privately मुझे chat box में there is an option in chat box. आप privately chat box में reply कर सकते हैं सर समझ में आया या नहीं आया. Okay, you can always say sir we understood or not. Okay, so स्नेहा दिव्या, okay, it's audible, clear है. ठीक है, हम लोग अब बेसिक स्टार्ट करेंगे आज सेलुलर रेस्पिरेशन का, और फर्स्ट इंट्रोडक्शन है. सो आई लास्ट यू वेरी बेसिक थिंग कि हमारी बॉडी में ह्यूमंस या एनिमल्स के अंदर जो स्टोर्ड फूड है ना, रेस्पिरेशन का एक बेसिक फंडा हमें पता होना चाहिए सेलुलर रेस्पिरेशन का कि हमारा स्टोर्ड फूड क्या है. कैन एनीवन टेल? इट विल बी इंटरेक्टिव सेशन, अदरवाइज इट विल बी वन साइडेड बोरिंग वर्चुअल सेमिनार. आई डोंट वांट दैट टू हैपन. सो यू कैन कम्युनिकेट विद मी इन द चैट बॉक्स. आपके पास चैट बॉक्स का ऑप्शन है एंड यू कैन कम्युनिकेट इन दैट वे कि आप अपना आंसर बताएं. व्हाट इज द मेन स्टोरेज थिंग? क्या है हमारा स्टोरेज फूड? व्हाट इज द स्टोरेज, मेन स्टोरेज इन आवर बॉडी? मतलब कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, क्या लगता है आपको? व्हाट डू यू थिंक? आई विल स्टार्ट विद दैट बेसिक सो दैट आई विल आल्सो हैव एन आइडिया
कि आप लोग किस लेवल पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। हेलो सर। हेलो सर। यस, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, ओके निश्चित, ठीक है। आप चैट बॉक्स को यूज करके निश्चित रिप्लाई कर सकते हैं, दैट वुड बी बेटर। लेट्स हैव दैट एज अ कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। चलो, काफी लोग ने मुझे रिप्लाई दे दिया है, ग्लाइकोजन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। बाकी लोग लाइक निर्भय आदित्य ने रिप्लाई किया है, दिव्या ने किया है, पवित्रा, ओके ओके, ठीक है। सो काफी लोग ने मुझे जो आंसर दिया है वो है ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट एंड वन और टू पीपल हैव सेड ग्लाइकोजन एंड फैट, है ना। यहाँ पे हमें ये समझना है कि एक्चुअल में क्या चीज काम आ रही है। तो आंसर इज फैट। फैट इज द मेन स्टोरेज फॉर अस। हम लोग ह्यूमंस में जो मेन स्टोरेज है, जो सबसे ज्यादा इवॉल्व माने जाते हैं, राइट। अब फैट क्यों, क्यों नहीं कार्बोहाइड्रेट? मैंने यहाँ पे ग्लाइकोजन या स्टार्च या इन सब के बारे में बात नहीं की। स्टार्च तो हमारे में स्टोर होता भी नहीं है, जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है वो भी अपना मेन स्टोरेज नहीं है। वाई? नेचर और इवोल्यूशन चोज फैट ओवर अदर्स। आप सोच सकते हैं कि आपके पास आंसर है, नेचर या इवोल्यूशन ने फैट को क्यों चूज किया? कैन यू क्विकली रिप्लाई? Kunal has answered immediately. Very good. Others? Can anyone quickly? Otherwise, I will be replying anyway. आपको जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, यू कैन से पास, सो आई वोंट वेट फॉर योर आंसर एंड वोंट वेस्ट टाइम, ठीक है। विवेक हैज आंसर्ड, परफेक्ट। विरल हैज आल्सो आंसर्ड। नो, निर्भयादित्य, दैट इज नॉट द रीजन। वेरी गुड। चलिए मैं आपको आंसर दे देता हूं इसका, ठीक है। दो रीजन है इसके। एक, पर ग्राम जो है, पर ग्राम जो कैलोरीज है या एनर्जी है वो ज्यादा मिलेगी, ठीक है, इज मोर। सेकेंड पॉइंट इसमें आता है वो है कि फैट जो है वो आपका हाइड्रोफोबिक चीज है। फैट इज हाइड्रोफोबिक। जब आप स्टोर्ड फूड कुछ ला रहे हो, ठीक है, और अगर वो हाइड्रोफिलिक है या उसके सराउंडिंग में वाटर जगह घेर रहा है, तो आपके वेयर हाउस में या स्टोर हाउस में फालतू में स्पेस वेस्ट होगा, ठीक है। ये दो चीज हैं। एक, जैसा बिल्कुल जानवी और कुछ लोगों ने जो बताया है कि विवेक ने बताया मोर एनर्जी में कार्बन, बिल्कुल सही जवाब है। एक तो पर ग्राम जो कैलोरीज है वो ज्यादा है, और फैट जो है वो हाइड्रोफोबिक है। सो इसको स्टोर करने में आसपास के एरिया में अगर हाइड्रोफिलिक बंदा होगा तो उसके सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट। लेकिन ये बंदा हाइड्रोफोबिक है, तो जो आपका स्टोर्ड एरिया है, एडिपोज टिश्यूज हैं या वो हैं, वहां पर आपका पानी एक्स्ट्रा स्पेस वेस्ट नहीं करेगा। सो एक्स्ट्रा स्पेस फॉर वाटर इज नॉट वेस्टेड। इवोल्यूशन हर चीज के ऊपर ध्यान देता है, ठीक है। ये दो की पॉइंट है जिसकी वजह से हमने फैट को ज्यादा प्रीफर किया। अब बात आती है कि पर ग्राम कैलोरी क्यों ज्यादा देता है। हम तो हर चीज को ब्रेक डाउन करेंगे ना कि अच्छा भाई पर ग्राम कैलोरी देता है, लेकिन फैट क्यों पर ग्राम कैलोरी ज्यादा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है। फिर हम ये जो सीक्वेंस है अपना लाइफ इज वर्क एंड मेटाबॉलिक पाथवेज को अपन समझेंगे, जो टिपिकल ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, वो आप सभी पढ़ते हैं। मैं जैसे इसको इवोल्यूशन से कनेक्ट कर रहा हूं क्योंकि वही जरूरी है ना। विदाउट इवोल्यूशन एंड थर्मोडायनेमिक्स यू कैन नॉट इंटरप्रेट बायोलॉजी। सो मेरा क्वेश्चन है कि व्हाई फैट गिव्स मोर एनर्जी। काफी लोगों ने मुझे बताया, दो तीन लोग ने मुझे, विवेक जैसे आइडिया भी है, व्हाई फैट गिव्स मोर एनर्जी देन अदर फूड सोर्सेस इन पर ग्राम मैनर, ठीक है। मैं डेटा पे नहीं जा रहा हूं कि कितना कैलोरी एंड ऑल, मैं आपसे लॉजिक पूछ रहा हूं, ठीक है। डेटा आपको कंटेंट दिया जाता है, आप रट सकते हो, याद रख सकते हो, लेकिन हमारा जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें फैक्ट से ज्यादा अप्लाइड वे में उस फैक्ट को आप कैसे अप्लाई करते हो वो जरूरी है। कैन एनीवन आंसर दैट?
फैट बाकी फूड सोर्सेस जैसे आपके प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है ना। वेरी गुड, करुणा वासु ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। बाकी लोग? Anyone else? आप पास बोल सकते हैं, so that I won't wait for your answers. If you don't know it, you can say pass. I'll immediately carry forward then. Okay. I hope किसी और का आंसर नहीं आ रहा है. Only Karuna Vasu has answered, and what she has answered. When fatty acids are oxidized, more energy is released. बिल्कुल सही जवाब है ये. ऐसा इसलिए होता है because ये छोटी छोटी चीजों पे अपन ध्यान देते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. Viral is also giving some answer. Okay, ठीक है. So ultimate answer, it boils down to what? I'll tell you. Carbon in fat is highly reduced, more reduced than your carbohydrates and proteins. ठीक है. कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के कंपेयर में अगर आप देखोगे, सो फैट की जो कार्बन है दैट इज मच मोर रिड्यूस्ड. ओके, ये जो क्रिएटिविटी किसी ने शो की है, प्लीज डोंट डू दैट. ऑन स्क्रीन somebody has done and showed abstract art, please don't do that. Okay. हाँ, सो आंसर क्या है कि आपका कार्बन जो है फैट में वो ज्यादा रिड्यूस्ड है, और जितना ज्यादा रिड्यूस कार्बन होगा उतना आपको ऑक्सीजन अप्लाई करनी पड़ेगी. टेक्निकली होता क्या है कि कार्बन के ऊपर आप ऑक्सीडेशन करोगे, ऑक्सीजन अप्लाई करोगे, जितना ज्यादा ऑक्सीजन दोगे, रेस्पिरेटरी कोशेंट के टर्म्स में ये सारी बात है ना, तो ज्यादा ऑक्सीजन देनी पड़ेगी CO2 को निकालने के लिए, क्योंकि CO2 इज व्हाट, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ कार्बन. वो तब निकलेगी CO2, COO तब बनेगा जब इसका H+ और रिडक्शन जो हुआ है वो आप ऑक्सीडाइज करते रहो C को, कार्बन को. तो जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन करोगे उतना ज्यादा NADH बनाएंगे या FADH बनाएंगे, और जितना ज्यादा NADH2 या FADH2 बनेगा वो आपका अल्टीमेटली लेके, NAD का क्या हो रहा है NADH2 बनने में, और NADH प्लस H+, टेक्निकली वो ज्यादा करेक्ट है, राइट, लूजली बाउंड H+ है सेकंड वाला. सो अगर आप NADH प्लस H+ बनवा भी रहे हो, उसको बनाने के लिए आपको H+ की जरूरत है, इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मतलब रिडक्शन हो रहा है. यहां रिडक्शन हो रहा है तो आपके फूड सोर्स का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है. फूड सोर्स को जितना ऑक्सीडाइज करोगे उतना NADH बना, जितना NADH बना वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में माइटोकॉन्ड्रिया में जाके आपको पैसा कन्वर्ट करा के देगा. इट विल कन्वर्ट योर NADH इनटू द, इट्स लाइक कि आपके पास एक तो होता है डायरेक्ट करेंसी जो आपके कैश है सेविंग्स अकाउंट में, वो ATP है, और एक NADH2 और FADH2 आपका प्रॉपर्टी है कि आपने जमीन खरीद रखी है, प्लॉट ले रखा है, फ्लैट ले रखा है, उसको आप सेल करोगे तो भी आपके पास करेंसी आएगी, और वो रजिस्ट्रार ऑफिस जहां पे आप ये सेल करने वाले हो वो है आपका माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. इज दैट क्लियर टू एवरीवन व्हाट आई हैव स्टार्टेड डिस्कसिंग? कि सबसे पहला तो हमें ये समझ में आया कि हमारे जो है स्टोर्ड फूड क्या है और उसका लॉजिक क्या है. क्लियर है? देन विल मूव फॉरवर्ड. ओके, जानवी, विवेक, गुड, क्लियर है सबको? ओके, चलिए ठीक है. आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस चीज का जो हम डिस्कस कर रहे हैं, आपका जो रेस्पेक्टिव टैबलेट या मोबाइल या लैपटॉप है ना, और बाद में आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं इन्हीं चीजों को. ये एक तरीका हो सकता है, और इससे आप नोट्स भी बना सकते हैं. एज वेल एज आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग ऑफ द लेक्चर ऑल्सो, सो इफ समबडी हैज मिस्ड एनी पॉइंट ड्यू टू नेटवर्क इशू यू कैन रिवाइज इट फ्रॉम द रिकॉर्डिंग. चलिए, शुड आई मूव फॉरवर्ड? तो ये है अपना फर्स्ट स्लाइड, है ना. सो एनर्जी की जरूरत हर किसी को है, ठीक है, चाहे वो जाइंट पैंडा हो या फिर वो ऑर्गेनिज्म हो जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम करते हैं या फिर जो प्लांट को कंज्यूम करते हैं. अल्टीमेटली हम सभी लोग एनर्जी के लिए डिपेंडेंट हैं. किस पे? हम सभी लोग एनर्जी के लिए डिपेंडेंट हैं प्लांट्स पे, राइट.
अब बात आती है कि अल्टीमेटली ये इसका सोर्स क्या है। जो हम प्लांट पे डिपेंडेंट हैं, चाहे हम हर्बीवोरस हैं या कार्निवोरस हैं या ओमनीवोरस हैं, हम सभी प्लांट पे डिपेंडेंट है। और प्लांट किस पे डिपेंडेंट है? अल्टीमेट जो है सनलाइट है। सन प्लांट्स को सनलाइट दे रहा है, प्लांट में खाना बना, उसको कंज्यूम करने वाले हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स से फूड चेन कार्निवोर्स तक जाएगी। इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ऑल आर कनेक्टेड टू द प्लांट्स एंड सनलाइट। ठीक है, दिस इज वेरी बेसिक थिंग, यू ऑल नो दैट। और सेल इसी एनर्जी को यूज करके और आपका एटीपी बनाते रहता है, जो आपको विच विल प्रोवाइड यू पावर और एनर्जी टू डू वर्क। ठीक है, क्लियर? सो दिस इज द स्लाइड। यहाँ पे आपका लाइट एनर्जी आ रहा है, ये आपका किचन है जहाँ पे खाना बन रहा है। खाना बनाने के बाद आपने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाए, वो आपके स्टोर हो रहे हैं और वो सब उसके बाद जब जरूरत पड़ी उन्हीं को आपने रेस्पिरेशन के लिए यूज किया माइटोकॉन्ड्रिया में, उससे आपको एनर्जी मिली और CO2 और H2 आपने रिलीज किया। तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जो है ना, वो आपस में कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, Akshata Shetty, slide is not visible. Is my slide visible to other students? Yes, sir. Yes. So some of the students are able to visualize. इसका मतलब अक्षता आपके वहां पर नेटवर्क इशू है। प्लीज ट्राई टू रिकनेक्ट, ज्वाइन द लिंक अगेन। अक्षता, ओके, दिव्या, जानवी, काफी लोग को विजिबल है। अक्षता, आपके वहां पे नेटवर्क इशू हो सकता है। ठीक है, चलिए, यू कैन रिकनेक्ट। अब ये बात हुई फोटोसिंथेसिस में आप फूड बना रहे हैं, रेस्पिरेशन में आप उसी फूड को यूटिलाइज करके CO2 और H2 रिलीज करना है, और ये ऑपोजिट वे में चलते रहता है, ये साइकिल चलती रहती है। मिलता क्या है यहाँ पे? रेस्पिरेशन से एटीपी मिलता है, एटीपी से आपका वर्क चलेगा, वो वर्क आपका हीट या एनर्जी किसी भी फॉर्म में ट्रांसफर हो सकता है। वो हमें पता ही है, थर्मोडायनामिक्स का लॉ है ना, कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, है ना। तो वो चीज चलती रहेगी। ये स्लाइड सबको क्लियर है? शुड वी मूव फॉरवर्ड देन? ये बहुत ही बेसिक्स चीजें हैं जो आई अज्यूम कि आपको पता है, इसलिए मैं थोड़ा सा क्विकली जा रहा हूं। ओके ओके, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे पाथवेज हैं। अपन बात करते हैं कैटाबॉलिक पाथवे। कैटाबॉलिक पाथवेज का मतलब होता है ब्रेकडाउन। मेटाबॉलिज्म इज व्हाट? सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन। उसमें दो पार्ट है, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। बेसिक चीज बता रहा हूं। एनाबॉलिज्म मतलब बायोसिंथेटिक रिएक्शन, कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेकडाउन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल। जब ये ब्रेकडाउन होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का या बड़े पॉलीसेकेराइड्स का या प्रोटीन्स का, तो वो रिएक्शन एक्सर्गोनिक होती है। एक्सर्गोनिक का मतलब क्या है? इट विल रिलीज एनर्जी। ठीक है, इट विल रिलीज एनर्जी, ये इसका मीनिंग है। ठीक है, फर्मेंटेशन, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन है। तीन टाइप के आपको कैटाबॉलिक पाथवेज यहाँ पे दिखेंगे। एक तो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया से लिंक हो जाएगा, इसमें आपका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा कार्बन का और CO2 रिलीज होगा। एटीपी आपको ज्यादा मिलेंगे, 36 या 38। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे तो 36 मेंशन है। ठीक है, और अगर अपन 2.5 वाली कैलकुलेशन जो एडवांस कैलकुलेशन है एटीपी की, एक NADH 3 एटीपी के बजाय 2.5 देता है, तो फिर वो कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन वो अभी तक अपडेटेड आई नहीं है। चलिए, फर्मेंटेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? पार्शियल डिग्रेडेशन होता है शुगर्स का, और यहां पर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, क्लियर है? एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी यही चीज है कि आपका ग्लाइकोलाइसिस जो है वो कॉमन होगा इसमें। ग्लाइकोलाइसिस क्यों कॉमन है? क्योंकि वो साइटोप्लाज्म में होता है, उसका ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं है। तो ग्लाइकोलाइसिस, कई बार ये रिएक्शन, ये क्वेश्चन सिंपल पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पाथवे इज कॉमन बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तब आपको बोलना है ग्लाइकोलाइसिस which occurs in cytoplasm. It is common pathway between aerobic and anaerobic respiration. ठीक है, it doesn't deal with your oxygen. ठीक है, जब इसको माइटोकॉन्ड्रिया में यहां से प्रोडक्ट जाएंगे तब ऑक्सीजन की बात आएगी। क्लियर है इतना? शुड वी मूव फॉरवर्ड?
ओके ओके जानवी, अक्सा, विरल, दिव्यानी, क्लियर है ना सबको? गुड. You can take screenshot. I'll wait for 1 or 2 seconds. चलिए, ये तो बेसिक डेफिनेशन और उस लेवल पे हमने बात की. ये है आपकी मेन रिएक्शन. जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है वो सेंट्रल है इस पूरे मेटाबॉलिज्म का. तो हम अभी तो फोकस करेंगे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे. C6H12O6 प्लस CO2 विल गिव यू CO2 एंड H2O. ठीक है, ये आपका एनर्जी रिलीज करेगा जो ATP और हीट की फॉर्म में बाहर जाना है ना. इसमें आपका ग्लूकोज का पायरुविक एसिड बनने तक, ग्लाइकोलाइसिस बनने तक जो पाथवे है वो कॉमन है. उसके बाद से पाथवे चेंज हो जाएगा. समझ में आया? सेलुलर रेस्पिरेशन में आपका एरोबिक और एनारोबिक दोनों काउंट होता है, लेकिन कॉमनली हम जिस सेंस में इसको यूज करते हैं वो मोर ऑफन देन नॉट वी टेंड टू इनडायरेक्टली बाय डिफॉल्ट, मतलब हम जो बोलना चाहते हैं दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन. ओके, और इससे आपका अल्टीमेटली एनर्जी रिलीज होता है. ये भी आपको पता है. आई एम जस्ट मूविंग फॉरवर्ड. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ बेसिक रिएक्शन. ओके, नाउ इन सारी रिएक्शन में आपका बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है और वो आपका एनर्जी रिलीज करने वाला है. इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जो बनेगा वो क्या इन रिएक्शंस में कॉमन है, वो है रेडॉक्स रिएक्शन. दे आर ऑल रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन में अ सब्सटेंस लूजेस इलेक्ट्रॉन्स और इट इज ऑक्सीडाइज्ड. रिडक्शन में आपका इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, H प्लस विद इलेक्ट्रॉन आता है, या आपका रिडक्शन H प्लस का एडिशन हो रहा होता है. ठीक है, या अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज आपका रिड्यूस होता है. ये बेसिक चीज है जो आपने 10th 11th लेवल पे पढ़ी भी होगी. वही चीज मैं रिवाइज कर रहा हूँ एंड यू आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर एंट्रेंस, सो आई अज्यूम कि ये चीज आपको पता है. स्टिल वी हैव गॉन थ्रू इट. यही आपकी बेसिक रिएक्शन है. Na becomes oxidized, it loses electron, it becomes Na plus. Cl becomes reduced, Cl minus. ठीक है, ये एक बेसिक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया भी है कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है, और ये हमेशा साथ साथ होता है. एक सबस्ट्रेट अगर आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा बाय डिफॉल्ट रिड्यूस हो रहा है, इसलिए हम इसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं. ठीक है, ये एक अलग एग्जांपल, बात एक ही है, तो उसमें हम टाइम वेस्ट करने वाले नहीं है. देन सिमिलर चीजें, रिपीटेटिव चीजें थी, तो मैं आगे बढ़ रहा हूं. यहां पर आपका मेन रिएक्शन जो है रेस्पिरेशन की, उसमें हो क्या रहा है, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है. तो यहां पर आपका ग्लूकोज जो है उसका कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है और CO2 बन रहा है, और ऑक्सीजन जो है उसको H प्लस मिल रहा है, वो H2O बना रहा है, तो वो रिड्यूस हो रहा है. ठीक है, और आपकी एनर्जी इस प्रोसेस में रिलीज हो रही है क्योंकि ये एक्सर्गोनिक प्रोसेस है ना. सिंपल है, समझ में आ गया सबको? आगे बढ़ें. शुड वी मूव फॉरवर्ड? ओके, यहां पर ये बताया जा रहा है कि आपका अल्टीमेटली ये स्टेप वाइज हार्वेस्टिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ले जाया जाता है. ये सेलुलर रेस्पिरेशन की एक ट्रिक है. आपने ये चीज नोटिस की होगी कि ग्लाइकोलाइसिस जो है वो डायरेक्टली नहीं हो रहा है ना, एक स्टेप या दो स्टेप में नहीं हो रहा. ग्लाइकोलाइसिस कैसे हो रहा है, हाउ इज इट हैपनिंग? Glycolysis, glucose is converted into pyruvic acid in 10 different steps, right? It is undergoing for 10 different steps to ultimately make pyruvate. Why? A 6 carbon compound can be broken into 3 carbon compound in 1 or 2 steps also. Why did they go through 10 steps? इतने सारे enzymes बनाना है ना, to make so many enzymes, and then those enzymes are proteins. Proteins will take ATP to be made. You have studied translation, right? So translation में आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा कि कितना एनर्जी उसमें खपत है, GTP और ATP की कितनी जरूरत होती है वहां पे एक ट्रांसलेशन में प्रोटीन के. तो आपने 10 स्टेप के 10 एंजाइम बना दिए, है ना. ये ध्यान रखना कि अपने बायोलॉजिकल सिस्टम में देयर इज नो रिएक्शन विच इज नॉट एंजाइम कैटालाइज्ड.
All reaction in our body are enzyme catalyzed. Why? Because they make it much faster. Lakhs of time, है ना, लाखों गुना तेज कर देता है वो रिएक्शन को. तो एंजाइम्स आपने इतने बनाए क्यों? 10 स्टेप के 10 एंजाइम का खर्चा करना. सेल तो एकदम मारवाड़ी अप्रोच के साथ चलती है कि एक एटीपी भी खर्चा करना पड़े ना तो उसको बहुत जोर आता है. They are of typical Marwadi approach. They won't spend a single penny which is of no use. ठीक है? They will never be extravagant. So why are they making 10 different enzymes and going for this long process of pathway, making glucose to pyruvic acid? You all have studied glycolysis. I know that. ठीक है? If you are preparing for entrance exam, I assume you have studied that, and it is taking 10 steps. Can anyone tell me why it is taking 10 steps? Why not in 1 or 2? Why nature did not evolve in such a way that it can make glucose to pyruvic acid in 1 or 2 steps without wasting time, without consuming energy in making 10 different enzymes? Why do they need to do that? Can anyone enlighten in that respect? क्या लगता है आपको नेचर ने ऐसा क्यों इवॉल्व किया? यू कैन से पास इफ यू डोंट नो, आई विल एक्सप्लेन दैट रिएक्शन. द लॉजिक बिहाइंड 10 स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस. सर पास. ओके, बाकी लोग? जानवी, विवेक, विरल, जानवी पंड्या, दिव्यानी परमार, एनीवन? पास. ओके ठीक है. चलिए इसका मैं आपको एक और स्क्रीन शेयर के थ्रू बताता हूँ. ओके ठीक है, मैं आपको बताता हूँ होता क्या है. लेट्स सी. लेट्स सी यहाँ पे आपका एक पाइपलाइन है, ठीक है, और यहाँ पे आपका वाटर फ्लो हो रहा है. ठीक है, मैं एक एनालॉजी दे रहा हूँ. यहाँ से पानी आपका यहाँ मूव करता है. मूव करने पे यहाँ पे एक छोटा सा ऐसा टरबाइन टाइप चलता है. इसके घूमने से जब पानी यहाँ से यहाँ पास होगा, ठीक है, इस नीचे वाले लेवल बी पे आएगा. ठीक है, टैंक ए टू टैंक बी. ये जब आता है तो ये टरबाइन मूव करता है. ये जब मूव करेगा इन अ सिंपल वे आप बोल सकते हो कोई भी एक सर्कुलर चीज है जो मूव कर रही है, उसके मूव करने से एनर्जी जनरेट होगी. ठीक है, अब क्या हो रहा है कि यहां पर जब पानी आ रहा है तो इसमें ये जैसे जैसे लेवल बढ़ते जाता है ना, इसका फुल होते जाता है, तो यहां पर पानी आना बंद हो जाएगा. अग्रीड? The water flow will stop if you are having A to B movement of water. ठीक है ना, ये आपका A से B में जो मूवमेंट हो रहा है वाटर का, ये आप और बेहतर इमेजिन कर सकते हो अगर मैं इसको इस वे में लिख दूं. यहाँ पे डायग्राम ऐसे बना दो एंड यहाँ पे आपका वो टरबाइन मूव कर रहा है. ठीक है, When it will move, जैसे जैसे पानी आएगा ये मूव करेगा. अगर ये फुल होते जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद यहाँ पर पानी का फ्लो बंद हो जाएगा और यहाँ पे आपको जो एनर्जी मिलनी थी इस प्रोसेस में, है ना, इस प्रोसेस में जो आपको एनर्जी मिलनी थी वो आपकी स्टॉप हो जाएगी. अब दूसरी कंडीशन देखो, व्हाट इज द सेकंड सिनेरियो? ये सिनेरियो 1. यहाँ पे एक है, 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 और इन सब को मैंने कनेक्ट कर दिया इस तरह से. और वाटर फ्लो जो हो रहा है यहाँ से, ठीक है, वो यहाँ पर हो रहा है. लेकिन ये फुल होने के बजाय इट विल ट्रांसफर द वाटर ओवर हियर इन द नेक्स्ट टैंक so that it will not get full and the turbine will be keep on moving.
So the turbine will be keep on moving. Okay. इस एनालॉजी को समझना जरूरी है. ये मैं जो आपको बता रहा हूं वो अगेन बायो एनर्जेटिक्स को समझने के लिए आपको हेल्प करेगा. ये समझ में आया? अब इसमें आपका पानी यहाँ पे स्टोर ही नहीं होगा. क्यों? क्योंकि वाटर इज कीप ऑन मूविंग डाउनवर्ड. यहाँ पर भी पानी स्टोर होके स्टॉप नहीं होगा क्योंकि ये टरबाइन चलती रहेगी, है ना. फ्लो आते रहेगा, ये फ्लो रुकेगा नहीं, ये भी फ्लो आते रहेगा. तो ये भी टरबाइन चलती रहेगी, ये भी चलती रहेगी. सो व्हेन यू गो थ्रू सीरीज ऑफ रिएक्शन और पाथवे, इंस्टेड ऑफ मेकिंग रिएक्शन इन दिस वे, ए इज मेकिंग बी और हियर यू आर मेकिंग ए to B, to C, to D, to E, to F, to G. इसका फायदा क्या है कि यहां पर आपका फ्लो जो है वो चलते रहेगा, टरबाइन चलती रहेगी. यू विल बी कीप ऑन हार्नेसिंग एनर्जी, यू विल बी कीप ऑन हार्नेसिंग एनर्जी जो आपका एटीपी की फॉर्म में होगी या किसी भी रिडक्शन पावर की फॉर्म में आप लाओगे तो वो भी अल्टीमेटली आपको एटीपी ही देंगे. कहीं पे भी स्टोर नहीं होगा. तो जो अपन फीडबैक पाथवे बोलते हैं ना, वो आपका अल्टीमेटली यहाँ पे काम नहीं करेगा इजीली. सो जितना लॉन्गर पाथवे है, ठीक है, और जितना पाथवे आपने बनाया है टू एक्सट्रैक्ट, इट्स लाइक यू आर एक्सट्रैक्टिंग मैक्सिमम फ्रॉम अ ग्लूकोज टू मेक पायरुविक एसिड और टू मेक CO2 थ्रू सीरीज ऑफ स्टेप्स इन सच अ वे दैट यू गेट मैक्सिमम एटीपी आउट ऑफ इट. जैसे वो गन्ने की मशीन देखी ना आपने, गन्ने का जो जूस निकालते हैं, शुगर केन जूस, they will keep on doing that. Guy will be keep on, है ना, rotating sugar cane in and out, in and out, in and out. You will feel कि अब तो बस कर भाई. ये चीज यहाँ पे होती है. So nature is that kind of person who will try to extract maximum, निचोड़ के रख देगा वो. इसीलिए वो सीरीज ऑफ स्टेप्स के थ्रू जाता है. ये बायोलॉजिकल थर्मोडायनेमिक्स का पैटर्न है. That's why they are preferring pathways. और वो pathways के थ्रू आप सभी ने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा होगा. आई एम नॉट डिनाइंग दैट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट इट इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. मैं एक डिफरेंट एंगल से आपको सोचने पे मजबूर कर रहा हूं कि इस तरीके से हमें बायोलॉजी को समझना है. एंड देन आई थिंक मे बी वी विल बी एबल टू कनेक्ट बायोलॉजी विद केमिस्ट्री और फिजिक्स इन अ बेटर वे. Yes, Viral is asking that, sir, I thought equivalently similar thought. Very good, Viral. But I have a question. If we get more amount of energy every time a process increase, why didn't it time to start? Yes. So आपको फिर time, you have to balance the time also. You have to balance the energetics of 100 different enzymes also. So मैंने क्या बताया आपको कि आप इतनी steps रखो कि आपको एनर्जी भी सफिशिएंट मिले और आपका खर्चा भी कम हो, टाइम भी कम स्पेंड हो. If you want to balance it out, then nature must have tried different ways. It's not the only way of converting glucose into CO2 or glucose into an energy forming product. It's not the only way. ये जो अपन ग्लाइकोलाइसिस पढ़ते हैं ना, that is not the only way. इसके अलावा भी हैं. अगर आप सूडोमोनास और उनके अलग अलग पाथवेज देखोगे, उनमें अलग अलग पाथवे हैं. ये तो एक अपना कार्बोहाइड्रेट का फेमस पाथवे है जो अपन पढ़े जा रहे हैं. ठीक है, देयर आर मेनी डिफरेंट वे. कुछ लोग डेटॉल पे ग्रो कर जाते हैं, उनके अलग पाथवे हैं. दे आर हैविंग डिफरेंट सोर्स फॉर एनर्जी. सो इट्स नॉट लाइक कि एक ही टाइप का पाथवे नेचर ने इवॉल्व किया था. हाँ, इट इज द मोस्ट सूटेबल जो सबने एकोमोडेट किया, या जो दूसरे पाथवे दूसरे ऑर्गेनिजम्स ने एक्वायर किए थे, मे बी दे वर नॉट सो एफिशिएंट दैट दे कैन सर्वाइव एंड फाइट इन द नेचर्स सर्वाइवल. तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का गेम था. जिसका पाथवे बेस्ट था, ज्यादा एनर्जी मिली, दे कुड हैव सर्वाइव. एंड मे बी दैट्स व्हाई वी आर एबल टू सी करंट पाथवे, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड ऑल. हो सकता है उसके अलावा भी कुछ पाथवेज बने हों जो आज काम नहीं आए, और उन्होंने वो 100 स्टेप वाला भी शायद विरल हो सकता है ट्राई किया हो. यू नेवर नो इट. या 50 स्टेप वाला, एंड दैट फेल्ड मिजरेबली, मे बी बिकॉज ऑफ द बैलेंस ऑफ टाइमिंग as well as how much you spent on making those enzymes to convert it into energy. समझ में आया विरल मैं क्या कहना चाहता हूँ? Are you getting what I'm trying to say?
Very good. You understood it completely. Great. So I hope you are following what I'm trying to put over here. ठीक है ना? मैं जिस तरीके से इस सब्जेक्ट को समझाना चाह रहा हूँ आपको जा रहा है, समझ में आ रहा है क्लियरली? हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया आप Yes, लोगों। sir. हाँ, ग्रेट। बेसिक से स्टार्ट किया, अब हम इसको धीरे धीरे टेक ऑफ करेंगे। चलिए, ग्रेट। प्राची, विरल, विवेक, सबको समझ में आ रहा है? ग्रेट। चलिए, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दिस इज द एडवांटेज ऑफ मेकिंग ग्लाइकोलाइसिस और ग्लाइकोलाइटिक पाथवे, दैट आप ज्यादा से ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एनर्जी को, है ना? Yes, चलिए, sir. ठीक है। तो इसी बात पे हम यहाँ पे रुके थे पीपीटी में। विल कम बैक टू द पीपीटी। और यही आपको मैं बता रहा था कि देखिए, सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लूकोज और बाकी मॉलिक्यूल, दे ऑल विल अल्टीमेटली ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन टू एनएडी एंड ऑल। एनएडी इज अ कोएंजाइम, है ना? एनएडी एंड ऑल, दे विल ट्रांसफर देयर H plus an electron, which will become NADH plus H plus, the reduced form, and this will enter in the electron transport chain of the mitochondrial membrane and generate ATP. ठीक है? अच्छा, कोई बता सकता है कि why, मतलब ATP is there as a central energy molecule? कभी दिमाग में आया कि ATP क्यों? कभी आपके दिमाग में ऐसा आया कि ATP ही क्यों? Why nature chose ATP as a central molecule for energy currency? मतलब ये पॉकेट मनी के फॉर्म में एटीपी को क्यों रखा गया? मैं एकदम बेसिक चीजें बता रहा हूं आज, है ना? और उस पे मैं आपको सवाल कर रहा हूं कि क्या हम बेसिक सवाल अपने आप से पूछते हैं? डू वी आस्क इनोसेंट क्वेश्चंस टू आवरसेल्व्स व्हाइल वी स्टडी द बुक्स? आई एम श्योर यू आर स्टडिंग लेनिंजर, स्ट्रायर या वॉइट एंड वॉइट, इस टाइप की जितनी भी बुक्स हैं आप सभी बायोकेमिस्ट्री के लिए फॉलो करते होंगे। दिव्यानी is answering something, okay. ATP is required, agreed, but why ATP? Why not someone else? मतलब क्रिएटिन फॉस्फेट करके जो होता है वो ज्यादा एनर्जी देता है एटीपी से, बिकॉज इट इज फाउंड इन द सेल्स ऑफ लिविंग बींग्स। पर आप देखिए कि एटीपी के अलावा भी क्रिएटिन फॉस्फेट भी आपका मसल्स में होता है। क्रिएटिन फॉस्फेट जो होता है वो ज्यादा कैलोरीज देता है एटीपी के कंपेयर में। एटीपी तो आपका 7.3 के आसपास दे रहा है, वो और ज्यादा देगा। तो आप ये भी नहीं कह सकते सर एटीपी बहुत अच्छी खासी एनर्जी देता है कैलोरीज के टर्म्स में। दैट्स व्हाई वी आर हैविंग एटीपी। सो व्हाई नेचर इवॉल्व्ड एटीपी एज अ मेन की गाय, मीडिएटर की तरह एनर्जी का की? वही तो कृणाल, I knew you will answer this, that phosphodiester bond in the ATP gives higher energy. That's why I said creatine phosphate is giving much higher energy than ATP. Why not that then? Okay, Jeet is answering something. ATP can be mass produced. It donates phosphoryl group. Divya, okay, good energy for organism. बेटा मैं वही तो बता रहा हूँ आप लोग को कि एनर्जी का तो मैंने आपको पहले ही आर्ग्यूमेंट दे दिया। बिकॉज इट इज प्रोड्यूस बाय माइटोकॉन्ड्रिया, दैट्स नॉट नेसेसरी। सो वाई, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का के अलावा कोई और, माइटोकॉन्ड्रिया ने ये प्रोड्यूस इसलिए किया है बिकॉज ये सूटेबल था। मैं पूछ रहा हूँ ये सूटेबल क्यों है? कॉज एंड इफेक्ट में जाना है हमें। Okay, Divya is saying on hydrolysis it gives free energy which is required for metabolic pathway. वही मैं आपको बता रहा हूँ दिव्या कि एनर्जी तो आपको क्रिएटिनिन फॉस्फेट भी दे देता, जीटीपी भी दे देता, और भी लोग हैं वो दे देते, तो व्हाई ओनली एटीपी? चलो मैं आंसर देता हूँ। आप लोग ने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया है एंड आप अच्छी बुक्स रेफर कर रहे हैं, दैट आई कैन अंडरस्टैंड। कुछ लोगों ने बहुत क्लोज गए हैं आंसर के। चलिए, लेट मी गिव यू द आंसर। एक चीज इसमें अगेन ये रहती है, जो मेटाबॉलिक पाथवेज हैं या एटीपी को चूज करने के पीछे रीजन है या लॉजिक है, वो ये है कि लेट्स से आपने क्रिएटिनिन फॉस्फेट ले लिया, ठीक है, और आपने एटीपी को ले लिया, और उससे भी लोअर एनर्जी वाला कोई और XYZ अपना
है जो फॉस्फेट बॉन्ड को रखता हो, ठीक है ना, कोई भी। इसमें ये है कि अगर आपने क्रिएटिन फॉस्फेट टाइप के किसी को ले लिया जिसकी हाई एनर्जी है, ठीक है, तो इस बंदे ने जब अपने फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक किया तो इसको रिजुविनेट करने के लिए आप फॉस्फेट बॉन्ड कहां से लाओगे? इसलिए कि आज अगर मुकेश अंबानी ही बैंकरप्ट हो जाए तो उसको फंडिंग कौन देगा? उस आदमी के बिजनेस को वापस रिवाइव करने के लिए तो बहुत ज्यादा पैसा चाहिए ना। तो वहां पर आपका प्रॉब्लम आ जाता है। जो आदमी ज्यादा पैसे वाला है या ज्यादा हाई एनर्जी बॉन्ड वाला है, उसका बॉन्ड एनर्जी तो आपको मिलेगा, आप उससे ले सकते हो, लेकिन फिर इसको रिजुविनेट करना बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए इसको हर रिएक्शन के लिए यूज नहीं कर सकते। एटीपी जो है ना, वो इन सब के बीच में आता है, मिडल में। इट कैन गिव एनर्जी टू द लोअर पीपल, जो इससे एनर्जी ले सकते हैं, मतलब इसके पास इतनी संपत्ति है, पैसा है ना, इट हैज सच अ बैलेंस, है ना, मनी बैलेंस, दैट इट कैन गिव मनी एंड फंडिंग टू द लोअर पुअर पीपल, अ स्मॉल बिजनेसमैन, as well as it can take from the bigger businessmen like Anil Ambani and all, Mukesh Ambani and all, sorry गलत नाम ले लिया, ठीक है, समझ में आया what I'm trying to say? So it is central guy. Now एक और क्वेश्चन आता है फिर दिमाग में कि ATP है तो GTP भी उसी रोल में आता है, जो किलो कैलोरी के टर्म्स में GTP भी उसी के आसपास का आता है, तो why not GTP then? So there are many thought and hypothesis that adenosine triphosphate का adenosine is working suitably as co-factor और coenzyme, आप जिस भी सेंस में लें, कुछ बुक में co-factor, कुछ बुक में coenzyme की टर्म्स में इनको इंटरप्रेट किया जाता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन बुक टू बुक वेरी करती रहती है। co-factor coenzyme की आप NCERT में अलग डेफिनेशन है, लेलिंजर में अलग डेफिनेशन है। is working suitably as cofactor or coenzyme for many enzymes, biological enzymes, and that's why maybe adenosine triphosphate got preference. एनर्जी वाइज ये GTP भी इनसे एनर्जी ले सकता था जब अपने आप को रिवाइव करना है, ऐसा है कंडीशन, और इनको एनर्जी दे सकता था, फंडिंग दे सकता था, बट GTP is in not in middle because adenosine is evolved in such a way that it can work as a cofactor or coenzyme for many of the enzymes. Have you understood what I'm trying to say? Are you developing an understanding for the basics of bioenergetics? Okay, good. So Viral, Janvi, Vivek, Aksa, सबको समझ में आ रहा है? Great. ठीक है, चलिए मैं इरेज करूं इसको। And we'll go back to the presentation. ठीक है, तो ये आपका NAD का स्ट्रक्चर है जो आपको मैं यहाँ पे समझा भी देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, इससे डरना नहीं है। NAD के साथ H+ मिला, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के साथ 2H+2 इलेक्ट्रॉन डिहाइड्रोजनस की प्रेजेंस में, इट विल बिकम NADH प्लस H+। सेकेंड H+ जो है वो दूर रहता है, ठीक है। ये आपका H पिंक कलर में जो दिख रहा है ना, वो H ऐड हो गया है यहाँ पे, ये रहा। निकोटीन अमाइड ग्रुप है, CONH2, ये निकोटीन अमाइड, ठीक है, ये आपका न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, सिंपल। H+ ऐड होने से NADH, और सेकेंड H+ लूजली बाउंड होता है तो NADH प्लस H+ इसको टेक्निकली बोला जाता है। तो सर, हाँ बोलिए सर वो वापस रिएक्शन बताइए। श्योर, जस्ट ये यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 हाइड्रोजन है ना ऊपर, हाँ, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे रिलीज हो गए उसमें से? 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कैसे हुआ? ये 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2H+ जो आपके आ रहे हैं वो फूड सोर्स से आ रहे हैं, जो आपने जो भी कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन या जो भी लिया होगा ना, फैट, उससे रिलीज हो रहे हैं, उस कार्बन से, तभी तो वो ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि उसने H+ रिलीज किए, और NAD जो है उसको H+ मिला तो वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, क्लियर हुआ आपको? यस सर। ओके निश्चित, चलिए। तो इस तरह से NADH जो है, उन्होंने फूड सोर्सेज जो भी होंगे, चाहे आपका फैटी एसिड होगा, चाहे फैट होगा या कार्बोहाइड्रेट होगा या प्रोटीन होगा, उनसे H+ लिए हैं उनके कार्बन, इलेक्ट्रॉन प्लस H+, और वो रिड्यूस होकर NADH बन गया।
ये NADH आपका जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। थोड़ी देर के बाद धीरे धीरे जब अपन इसके एंडिंग पे जाएंगे, मैं आपको पूरा ओवरव्यू बताऊंगा कि एक ग्लूकोज के टूटने से एंड में एटीपी बनने तक पूरी स्टोरी क्या है। देन यू विल हैव अ एंटायर पिक्चर इन योर माइंड, ठीक है ना। और यही चीज जो मैंने आपको बताई थी वही अब पीपीटी में आ रही है। अनलाइक एन अनकंट्रोल्ड रिएक्शन, द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन passes इलेक्ट्रॉन इन सीरीज ऑफ स्टेप्स इंस्टेड ऑफ वन एक्सप्लोसिव रिएक्शन। एक्सप्लोसिव रिएक्शन में आप एक्सर्गोनिक कर तो दोगे लेकिन उतना एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाओगे जितना आप सीरीज ऑफ स्टेप्स के थ्रू मीडिएट करके ले सकते हो, ठीक है। वही चीज उन्होंने अभी बोली है। एंड दिस एनर्जी इज यूज्ड टू रीजनरेट एटीपी। ये रहा, यही चीज मैंने आपको पहले एक्सप्लेन की कि ये आपका डायरेक्टली एक्सप्लोसिव रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी। और यहाँ पे आप देखो सेलुलर रेस्पिरेशन में होता क्या है, ये मल्टीपल टर्बाइंस चल रही हैं, है ना। और यहाँ पे आपका फूड से NADH बनता है और ये सीरीज ऑफ रिएक्शन के थ्रू आप अल्टीमेटली वाटर बना रहे हो, है ना। और एटीपी, ये वाटर कहाँ पे बन रहा है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में बन रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया में ये सीरीज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से H+ ट्रांसफर होते होते आ रहे हैं और अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन ETC इज ऑक्सीजन। ये दोनों मिलके वाटर बना रहे हैं, इसी को हम मेटाबॉलिक वाटर भी बोलते हैं। जो आपने कभी कभी ये देखा होगा कैंगेरू रैट का एग्जांपल, डेजर्ट वाले एरिया में वो लोग वो होते हैं ना, एडेप्टेशन में कई बार लिखा रहता है बायोकेमिस्ट्री की बुक्स में कि कैंगेरू रैट और ये लोग एडेप्ट करते हैं, मेटाबॉलिक वाटर बनाते हैं फैट के ऑक्सीडेशन से। वो क्या है, यहीं पे कनेक्ट करो आप, फैट का ऑक्सीडेशन हुआ तो उसने, इसका मतलब किसी को रिड्यूस किया, किसको रिड्यूस किया, तो NADH को, NAD को H+ दिया तो रिड्यूस हुआ। फैट ऑक्सीडाइज हुआ उसका कार्बन, NAD को NADH बनाया, फैट के ऑक्सीडेशन से एनर्जी भी मिली, NADH बना, उससे भी ATP मिले और अल्टीमेटली H+ जो है वो ऑक्सीजन को मिलके H2O भी बनाया जिसको अपन बोलते हैं मेटाबॉलिक वाटर। तो पानी की कमी वाले एरिया में कुछ लोगों ने इस तरह का भी एडेप्टेशन किया है, वो चीज यहाँ पर भी कनेक्ट कर सकते हो आप। तो आप जब चीजें पढ़ो जितना हो सके कनेक्ट करो तो आपको याद रखने की जरूरत कम होगी, बाय हार्ट करने की जरूरत कम होगी, जितना लॉजिक और कनेक्ट डॉट्स को कनेक्ट करते रहोगे। ओके, आई होप आपको ये वाली स्लाइड मैंने पहले भी बता दी थी पूरा बना के, सो समझ में आ गई होगी। शुड आई मूव फॉरवर्ड? ओके, ठीक है। सो अब हम बात कर रहे हैं सेलुलर रेस्पिरेशन में अलग अलग स्टेजेस क्या हैं। ग्लाइकोलाइसिस विच विल ब्रेक डाउन द ग्लूकोज इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। कैसे बनेगा अभी अपन देखेंगे वन बाय वन, डोंट वरी। सिट्रिक एसिड साइकिल जिसमें आपका कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, CO2 में कन्वर्ट होता है और उसमें जो इन दोनों रिएक्शन में NADH2 और FADH2 बने हैं वो आपके जाते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में। दो टाइप के फॉस्फोराइलेशन होते हैं, एक होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल का मतलब है जो डायरेक्ट आपकी रिएक्शन में ATP GTP बन जाता है ना, जो कैश बनता है वो। और एक होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जिसमें आपकी कोई रिएक्शन हुई है और उसमें आपने क्या बनाया, ऑक्सीडेटिव में आपने NADH2 या FADH2 जो बनाया और उसके थ्रू आपने, through that if you have made ATP, that is substrate level, that is oxidative phosphorylation. This is oxidative and substrate level is direct formation of ATP. ठीक है, जैसे आपका हो गया फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से पाइरुवेट जब बना तो उस टाइम पे जो ATP निकला है ना, जो ATP बना, दैट रिलीज ऑफ ATP इज सबस्ट्रेट लेवल, डायरेक्टली बन गया। जो NADH2 और FADH2 बने जिस रिएक्शन में और फिर वो इनडायरेक्टली आगे जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आपको ATP देगा, दैट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। व्हाई ऑक्सीडेटिव? बिकॉज इट विल गो थ्रू सीरीज ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आप देखोगे ETC ट्रांसपोर्ट, आपको मैं अभी बताऊंगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पाथवे, तो आपको समझ में आने लगेगा। इतना क्लियर हो गया? इज इट क्लियर? एंड सिट्रिक एसिड साइकिल, अपना क्रेब्स साइकिल जो है, इट कंप्लीट्स द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ये पार्ट अपन डिस्कस कर चुके हैं। इज इट क्लियर? शुड वी मूव फॉरवर्ड इन द डिटेल्स, फर्दर डिटेल्स? ओके, चलिए। वेरी गुड, सबका रिप्लाई आ गया है काफी लोग का।
They've understood it. So this is the overview. See, glucose to pyruvic acid in glycolysis, this is occurring in cytosol. Electrons are carried via NADH and energy, chemical energy is forming ATP. डायरेक्ट ATP यहीं पे बन रहा है साइटोप्लाज्म में, है ना, वो आपका विदाउट गोइंग टू द माइटोकॉन्ड्रिया एंड कन्वर्टिंग NADH और FADH into ATP, that is substrate level. डायरेक्टली सबस्ट्रेट से ही बन गया, वो सबस्ट्रेट के लेवल का है. Then what happens? The pyruvic acid will go inside the mitochondria, ठीक है, और यहाँ पर आपका एसिटाइल कोएंजाइम ये बनता है और वो सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर करेगा. This citric acid cycle will give you NADH2 and FADH2. They will undergo electron transport chain to produce ATP, and some of the stages will produce direct ATP. Actually directly ATP नहीं बनता, GTP बनता है यहाँ पे, और वो GTP is equivalent to ATP, तो वो आपका ATP बना के दे देगा. ठीक है, और उसके बाद NADH of glycolysis goes inside the mitochondria, as well as NADH and FADH of citric acid cycle will also go for the electron transport chain and chemiosmosis and generate ATP. ठीक है, this is oxidative phosphorylation. यहाँ पर डायरेक्ट बना ATP substrate level, यहाँ पर डायरेक्ट बना ATP substrate level, very clearly it is mentioned. But when it is going through this pathway of electron transport chain, मतलब NADH और FADH जो भी ATP बना के देंगे, they are all through oxidative phosphorylation. I hope it is clear with the flow chart, right? You can take screenshot so that you will have an idea to revise it. Absolutely clear? Okay, Viral. ठीक है. I'm waiting for 1 or 2 seconds so that you can take the screenshot and then we'll move forward. Okay. ठीक है. Oxidative phosphorylation आपको मैंने explain कर दिया, and it is roughly 90% of the ATP generated by the cellular respiration. क्योंकि substrate level respiration is very few steps which will generate ATP directly, है ना, इसीलिए. और अभी मैं आपको बताऊंगा अभी कि कौन कौन सी स्टेप में सबस्ट्रेट लेवल बनेगा when we go through the glycolysis. Okay, this way phosphorylation occurs, this is substrate level. ये आपको डायग्राम के साथ भी बता दिया गया. एंजाइम ये सबस्ट्रेट के पास फॉस्फेट है, उसने ADP को डायरेक्टली दिया और ATP बनाया और वो एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया. That is your substrate level. Take the screenshot, क्लियर दिमाग में रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स में आते हैं कि if there are 2 fructose molecule or 2 galactose molecule, then how many ATPs will be generated in the cytosol only, cytoplasm only in substrate level phosphorylation. तो आपको उस टाइप के न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं. मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा. एक बार मैं चाहता हूं आपको पूरी थ्योरी पढ़ा दूं and then we'll go for the objective kind of numericals also. Taken? Yes, sir. Okay. So इसमें ग्लाइकोलाइसिस में 2 फेज हैं, है ना. इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म एंड एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज एंड पे ऑफ फेज. एक तो इन्वेस्टमेंट करना आपको कोई भी बिजनेस में, एंड देन यू विल गेट रिटर्न आउट ऑफ इट, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, है ना. 2 स्टेजेस हैं. ठीक है, ये रहा. इन्वेस्टमेंट फेज में आपने 2 ATP आपने यूज किए होते हैं और 2 ADP और 2 फॉस्फेट रिलीज होते हैं. ठीक है, कहाँ होते हैं वी विल अंडरस्टैंड, डोंट वरी, बी पेशेंट. पे ऑफ फेज में क्या होता है, आपको रिटर्न मिलता है और वो 4 ATP मिलता है. उसके साथ साथ 2 NAD, 2 NAD will be converted into 2 NADH plus H plus, so 2 NADH2, 2 pyruvate, so 2 NADH2 will be formed and 4 ATP will be formed. 2 ATPs are utilized, 4 ATPs are formed at substrate level in glycolysis. This is substrate level, total formed. लैंग्वेज क्वेश्चन की समझना बहुत जरूरी है. सबस्ट्रेट लेवल टोटल फॉर्म, अगर आपको यहां पे पूछ ले कि सबस्ट्रेट लेवल गेन ऑफ ATP or profit of ATP, then you should say 2 ATP. Your answer should be 2 ATP.
If they say substrate level total form, then you should say 4 ATP. So language of the question matters. ठीक है ना, गेन पूछा है तो 2 ATP का है, क्योंकि आपको ये 2 ATP का जो खर्चा किया है वो माइनस करना है 4 में से. बट टोटल कितने बने सबस्ट्रेट लेवल पे, तो यू शुड से 4 इन ग्लाइकोलाइसिस, है ना. 2 NADH2s आर फॉर्म्ड, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आपको ATP देंगे, वो हम धीरे धीरे समझेंगे. ठीक है, दे विल गिव यू 6 ATP अकॉर्डिंग टू 3 ATP पर NADH थियरी. 2.5 के हिसाब से कम हो जाएगा. क्लियर है. सो नेट अगर देखें तो ग्लूकोज विल गिव यू 2 पायरुवेट प्लस 2 H2O, 4 ATP formed, 2 ATP used, तो सबस्ट्रेट लेवल गेन और नेट गेन इज 2 ATP प्लस 2 NADH2. ठीक है. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से ग्लाइकोलाइसिस कितना देगा? 1 NADH gives 1 NADH makes 3 ATP, so 2 NADH will make 6 ATP. So total अगर दोनों को मिलाएं, टोटल ATP फॉर्म ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्लस सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव प्लस सबस्ट्रेट लेवल, तो आप क्या बोलोगे? 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8 नेट गेन. वेरी क्लियर इन द लैंग्वेज, यू हैव टू बी वेरी क्लियर इन द लैंग्वेज. मैंने गेन वर्ड यूज किया है, टोटल फॉर्म बोलता तो मैं 10 कर देता. इज इट अंडरस्टूड बाय एवरीवन? कोई डाउट है यहाँ पे? प्लीज डू आस्क, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल बनते हैं इसको. हाँ सर, पता नहीं चल रहा कुछ भी. पता नहीं चला? कुछ भी पता नहीं चल रहा. अच्छा ठीक है. आपने ग्लाइकोलाइसिस मतलब रिसेंटली ऐसा रिवाइज नहीं किया, राइट? मे बी दैट्स व्हाई. आपको 12th में किया था, उसके अच्छा उसके बाद नहीं किया ना. चलो कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ, आपको पूरा ग्लाइकोलाइसिस बताता हूँ, उसके बाद इस पे आते हैं अपन वापस. ठीक है, तो आपको शायद वो क्लियर हो जाएगा ग्लाइकोलाइसिस पूरा पढ़ने के बाद. लेट्स कम बैक टू द स्लाइड लेटर ऑन. चलो ये रहा अपना ग्लाइकोलाइसिस. फर्स्ट स्टेप क्या है ग्लाइकोलाइसिस का? अपन पूरी ग्लाइकोलाइसिस पढ़ते हैं, फिर मैं आपको कैलकुलेशन वापस बताऊंगा. ग्लूकोज आपका हेक्सोकाइनेज एंजाइम है, हेक्सोज शुगर पे एक्ट करता है, तो वो हेक्सोकाइनेज है. काइनेज वर्ड जहां पे आया, इट विल ऑलवेज डील विद फॉस्फेट. ठीक है, हेक्सोज शुगर पे एक्ट करता है, तो हेक्सो एंड काइनेज वर्ड आया बिकॉज इट डील्स विद फॉस्फेट. ठीक है, PO4 के साथ, है ना. जनरली ये एडिशन ऑफ फॉस्फेट के साथ डील करता है ना. किसी न किसी सबस्ट्रेट पे A या B कोई भी सबस्ट्रेट होगा उसमें फॉस्फेट ऐड कराएगा. तो यहां पर इसने क्या किया है, ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ATP, ये खर्चा कर रहे हो आप, अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो बिजनेस में. ग्लूकोज विल बिकम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. व्हाट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट? ये आपका फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ एंड सिक्स्थ कार्बन. देखो 6th कार्बन पे फॉस्फेट ऐड हो गया. व्हाट इज इट? ग्लूकोज 6 कार्बन पे फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. हु डिड इट? द वन हु वर्क्स ऑन हेक्सोज शुगर. ग्लूकोज इज अ हेक्सोज शुगर, है ना. 6 कार्बन का शुगर है तो आप हेक्सा वर्ड यूज करोगे, हेक्सोज, है ना. एल्डोज शुगर है तो आपका हेक्सोज शुगर है. ये काइनेज वर्ड किसके लिए पीछे आता है? जो फॉस्फेट एडिशन को डील करे, है ना. कहीं पे भी काइनेज आया, बाय डिफॉल्ट समझ लो उस रिएक्शन में कहीं ना कहीं फॉस्फेट का एडिशन या रिमूवल हुआ है. ओके, इज दैट क्लियर? फर्स्ट स्टेप with structure and all. What is happening in first step? You are utilizing ATP. It is the first step where you utilize the ATP. One molecule of glucose will make one molecule of glucose 6 phosphate. ये ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर है और फॉस्फेट ये 6th कार्बन पे अटैच्ड है. इज इट क्लियर नाउ निशित? फर्स्ट स्टेप क्लियर है ना? ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो. चलो मैं आपको पूरी स्टेप्स बताऊंगा, फिर आपको आराम से समझ में आ जाएगा वो. टेकन? यस सर. ओके, ये सेकेंड स्टेप. अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो आपका ग्लूको आइसोमरेज, टेक्निकली क्या हो रहा है, आइसोमरेज की हेल्प से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो गया. 6 कार्बन पे तो फ्रक्टोज 6 कार्बन पे फॉस्फेट तो था ही, आपने जस्ट क्या किया है, ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनाया है. क्या डिफरेंस है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में?
आपने अगर बायोमोलिक्यूल पढ़ा है तो आपको आइडिया होगा कि दोनों 6 कार्बन शुगर है ना। बस डिफरेंस इतना है कि ये आपका एल्डोज शुगर है, ये आपका कीटो शुगर है ना, एल्डोज और कीटो शुगर है। तो ग्लूकोज से फ्रक्टोज जो है ये आपस में आइसोमर है, तो आपका इसीलिए एंजाइम का नाम आया आइसोमरेज। क्लियर? सेकेंड स्टेप भी, तो यहां पर क्या हुआ है, सिर्फ आइसोमराइजेशन हुआ है, ओनली आइसोमराइजेशन। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू फ्रक्टोज एंड 6 फॉस्फेट ऑलरेडी था, तो 6 फॉस्फेट अभी भी लगा हुआ है, ओनली आइसोमराइजेशन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यहां पे कोई एटीपी से डील नहीं हो रही। ओके सर। ओके, चलिए सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विल मूव फॉरवर्ड टू द सेकंड थर्ड स्टेप देन। चलिए थर्ड स्टेप में क्या है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट विल बी कन्वर्ट टू फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, है ना। यहां पर F16BP बना है, इसका मतलब फ्रक्टोज के 6th कार्बन पे भी फॉस्फेट है और अब फर्स्ट कार्बन पे भी, ये जो फर्स्ट कार्बन था वहां भी फॉस्फेट लगा, इसका मतलब आपको एक फॉस्फेट ऐड करना पड़ेगा। वो फॉस्फेट कहां से ऐड हुआ, ये 1 फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट मॉलिक्यूल इज बिकमिंग 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। फर्स्ट कार्बन पे भी फॉस्फेट लगा एंड 6th कार्बन पे भी फॉस्फेट लगा। अब आप ध्यान से देखें तो ये सिमेट्रिकली फ्रक्टोज इज व्हाट, मैं अगर इसको लीनियर फॉर्म में तोड़ दूं तो ये क्या है, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, है ना, 1 and 6। यहां पर फॉस्फेट है और एक यहां पर फॉस्फेट है ना। क्लियर? अब इसमें क्या हो रहा है, अगली स्टेप में नेचर ने ये स्टेप रखा है कि अब आगे जाके मुझे इसको ब्रेक करना है, तो इसने क्या करा दिया, हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड लगाया। अगर आपने 10th 11th लेवल पे केमिस्ट्री पढ़ी है, सो दे विल से कि अगर हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड किसी में भी बाइंड होता है या हाई एनर्जी कंपाउंड जो भी होता है, दे आर टेक्निकली थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल कंपाउंड। व्हेनेवर यू आर एट हायर एनर्जी, द थर्मोडायनेमिक्स से यू आर नॉट दैट स्टेबल कंपाउंड। यहां पर आपने एक बॉन्ड नहीं, आपने दो बॉन्ड बना दिए। ऑब्वियसली आपने यहाँ पे एटीपी यूज किया क्योंकि आपने एक्स्ट्रा फॉस्फेट यहाँ पे ऐड किया है जो यहाँ पर नहीं था, राइट। यू कैन सी फॉस्फेट वाज नॉट देयर, यहाँ पे आपका फॉस्फेट आ गया, है ना। तो मैंने इसको लीनियर फॉर्म में लिख दिया, कार्बन 1 पे भी फॉस्फेट है, कार्बन 6 पे भी फॉस्फेट है। जब ये बनता है दो फॉस्फेट हाई एनर्जी बॉन्ड लगे हैं, सो इट विल बी थर्मोडायनेमिकली हाईली अनस्टेबल। तो ये अगली स्टेप में ब्रेक होगा। और आपने सिमेट्रिकली फर्स्ट और 6 कार्बन पे ही लगाया है। नेचर की ब्यूटी देखो, इसने फर्स्ट और 6 कार्बन पे लगाया, तो ये ब्रेक करोगे तो दोनों का ये कार्बन 1 बन जाएगा और 1 2 3 हो जाएगा, 1 2 3। फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से ये C1 बदल जाएगा, ये C2, ये C3, दोनों एकदम आइसोमर की जैसे बन जाएंगे, सिमेट्रिकली टूट रहा है। नेचर ने कितना ब्यूटीफुली प्लान किया हुआ है। पहले तो ग्लूकोज को हाई एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट किया, आइसोमराइज करके फ्रक्टोज 6 में कन्वर्ट किया, फ्रक्टोज 6 को फ्रक्टोज 1,6 में इस तरह से किया कि ये सिमेट्रिकली 2 3 कार्बन मॉलिक्यूल में टूट जाए, क्योंकि आपका अल्टीमेटली पायरुविक एसिड 3 कार्बन का है और ये हाई एनर्जी पे आप ले आए। समझ में आया? इज इट अंडरस्टूड? यस सर। क्लियर टू अदर्स ऑल्सो? ओके गुड। जानवी को एकदम एब्सोल्युटली क्लियर है, निश्चित को भी, अदर्स गुड, दिव्या, विवेक, प्राची, जीत, गुड। सो आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अगली स्लाइड पे आपको लेके चलता हूँ। ओके साक्षी, ठीक है। शुड आई इरेज इट? अच्छा, लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड देन। अब अगली स्लाइड में क्या हो रहा है, देखो वही जो मैंने आपको बताया था, ये 6 कार्बन पे फॉस्फेट, फर्स्ट कार्बन पे फॉस्फेट, ये ब्रेक हो गया सिमेट्रिकली, तो आपको डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट मिला और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मिला। टेक्निकली देखो दोनों 3 कार्बन के आइसोमर है, देखो लिखा हुआ भी आइसोमरेज। एल्डोलेस की प्रेजेंस में ये ब्रेक हो गया और दोनों आइसोमर बन गए। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, देख लो, यहाँ पे फॉस्फेट, यहाँ पे भी फॉस्फेट, ये CO बॉन्ड है, यहाँ CHOH है ना, CH के साथ CHO है और यहाँ पे CHO। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप का, यहाँ पर डिफरेंस क्या है, कीटोन ग्रुप का। दिस टू आर जस्ट 3 कार्बन कंपाउंड्स, 1 इज कीटोन इसलिए एसीटोन आया है, 1 इज एल्डिहाइड इसलिए एल्डिहाइड आया है, और फॉस्फेट लगा हुआ है तो फॉस्फेट आप पीछे नाम में लगा रहे हैं। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट
एल्डिहाइड क्यों बोला? क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ फंक्शनल ग्रुप CHO। C2 जो होता है वो आपका ऐसा ही होता है, CO जो C डबल बॉन्ड वो कीटोन जो होता है वो आपका R ग्रुप इधर, R ग्रुप इधर, और यहाँ पे CO है, ये आपका कीटोन ग्रुप है। मैं बेसिक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, है ना। तो ये आपका डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, नाम आपको ऐसा लगेगा कि ये बड़ा डिफरेंट है दोनों, लेकिन एक्चुअल में एक जैसे ही है। ध्यान से देखो तो बस इतना डिफरेंस है, एक बंदे के यहाँ कीटोन ग्रुप है, एक में एल्डिहाइड है। हैव यू अंडरस्टूड इट? तो ये आइसोमरेज की मदद से एक दूसरे में इंटरचेंज होते रहते हैं और इनके बीच का डेल्टा जी जो होता है वो इतना कम होता है कि आराम से इंटरचेंज कर सकते हैं। समझ में आया? अब आपने अगली स्टेप में क्या करना है, निश्चित क्लियर हुआ है? यस सर। बाकी लोग को आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। चलिए वेरी गुड। तो मैं अब अगली स्टेप बताता हूँ। अगली स्टेप में क्या होगा, ये ग्लिसरल्डिहाइड कंज्यूम होते रहेगा। अब हमने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि अगर दो प्रोडक्ट एकदम आसपास हैं, है ना, थर्मोडायनेमिकली, और ये किसी में कन्वर्ट होगा तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होते रहेगा क्योंकि ये प्रोडक्ट ए में जा रहा है, आगे आगे के पाथवे में जा रहा है। इसका मतलब ये कंज्यूम होते रहेगा, ये कंज्यूम होगा तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा देन इट विल बी कीप ऑन मेकिंग ग्लिसरल्डिहाइड। तो आपकी ये इक्वल होती है ना रिवर्सिबल रिएक्शन, वो आपकी कुछ ऐसी हो जाएगी। ये यहां पे कन्वर्ट होने के बजाय डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट थर्मोडायनेमिकली ग्लिसरल्डिहाइड बनाता रहेगा क्योंकि इसकी डिमांड है, ये डिमांड है और ये कंज्यूम होते जा रहा है आगे की रिएक्शन में। तो DHAP जो है आपका वो GAP में कन्वर्ट होते रहेगा। इसीलिए आप एरो कई बार देखोगे कि रिवर्सिबल रिएक्शन है, लेकिन एक्चुअल में एरो आपका इसकी तरफ टिल्टेड होता है और कई बार डायरेक्टली लिख देते हैं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट इज अल्टीमेटली मेकिंग 2 मॉलिक्यूल ऑफ GAP, ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट, या G3P, जो भी नाम आप बोलो शॉर्ट में। क्यों? क्योंकि ये भी एक मॉलिक्यूल था और ये भी एक मॉलिक्यूल था, इसका एक मॉलिक्यूल आपका इसी में कन्वर्ट हो गया, तो अपन ने क्या बोल दिया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट। इज दैट अंडरस्टूड नाउ कि क्यों अपना ये इधर इंक्लाइंड होता है ये रिएक्शन, ये झुकाव, इंक्लिनेशन, व्हाई इट इज सच? बिकॉज दिस गाइज गेटिंग कंज्यूम, ये कंज्यूम हो रहा है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज नहीं हो रहा, तो झुकाव जो होगा रिएक्शन का वो यहां पर होगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब आपका ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट देखो आगे कंज्यूम हो रहा है, और यहां पर एक बहुत ही ट्रिकी चीज हो रही है थर्मोडायनेमिकली, ये बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ट्रायोस फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज क्या कर रहा है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ला रहा है, एटीपी से फॉस्फेट नहीं ले रहा। It is not consuming ATP's phosphate, it is consuming phosphate from the phosphate buffer of the cell. H3PO4 से ला रहा है। That's why we are saying PI, I for inorganic phosphate. Inorganic phosphate लाया मतलब ATP का खर्चा नहीं करा। ATP इनिशियली आपने 2 ATP 2 स्टेप में लिए। कौन सी 2 स्टेप में? ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। 2 जगह पे आपने फॉस्फेट ATP की खर्चे किए। यहां पर जो फॉस्फेट आ रहा है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट किया, मतलब इसी में 3rd कार्बन पे फॉस्फेट था, यहां पर भी इन्होंने फॉस्फेट लगा दिया। ये देखो ये फॉस्फेट आ गया 1 कार्बन पे और 3 कार्बन पे, दोनों पे, तो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बनाया। लेकिन यहां पर जो फॉस्फेट का एडिशन हुआ और आपके 2 ग्लिसरल्डिहाइड बने, क्योंकि DHAP भी ग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ, तो ये भी 2 मॉलिक्यूल होंगे, तो आपको 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट चाहिए। यू विल नीड 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, 1 on each glyceraldehyde 3 phosphate to become 1,3 bisphosphoglycerate, right? Is that clear? Please let me know quickly. You have next class, so I will be in hurry to finish it. है ना, मैं क्विकली इसको फिर फिनिश करूंगा। आपका नेक्स्ट क्लास है 10:20 पे। ओके चलो, ये आपका नेक्स्ट 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट ने चालाकी से क्या किया कि लिया तो फॉस्फेट फ्री में बिना एटीपी के खर्चे के, लेकिन जब रिलीज किया, स्मार्टनेस देखो नेचर की, ले तो लिया लेकिन रिलीज किया वो आपका एटीपी को दिया, एडीपी को देके और एटीपी बनाया। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट विल बिकम 3 फॉस्फोग्लिसरेट
3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और फर्स्ट कार्बन पे जो फॉस्फेट था उसको हटा दिया दोनों मॉलिक्यूल ने, तो 2 एटीपी बना। ठीक है, और यहां पर अगेन काइनेज वर्ड आया, क्यों आया? बिकॉज सी फॉस्फेट एडिशन हो रहा है, फॉस्फेट कहीं ना कहीं आपका पिक्चर में आ रहा है। फॉस्फोग्लिसरो तो नाम ही है इस बंदे का, फॉस्फोग्लिसरेट, तो वहां से फॉस्फोग्लिसरो और काइनेज बिकॉज इट इज डीलिंग विद द फॉस्फेट। आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड द नेम ऑफ एंजाइम सो दैट यू डोंट नीड टू बाय हार्ट दैट। इज दैट क्लियर? शुड वी मूव फॉरवर्ड देन? आप आगे 3 फॉस्फोग्लिसरेट पे और 2 एटीपी बना दिए, तो आपने जो खर्चा किया ना 2 एटीपी का, वो तो यही वसूल हो गया। चलिए आगे बढ़े, क्विकली मैं आगे जा रहा हूं। ये देखिए 3 फॉस्फोग्लिसरेट अब क्या कर रहा है? म्यूटेस, मतलब आइसोमराइजेशन हो रहा है। जस्ट ये फॉस्फेट यहां से हटके थर्ड कार्बन से सेकंड कार्बन पे जा रहा है। ऐसा नेचर ने क्यों किया? थर्ड कार्बन से हटा के सेकंड फॉस्फेट पे, सेकंड कार्बन पे इसको चेंज कराया, बिकॉज यहां पर जब कार्बन मिडल में होता है, अगेन केमिस्ट्री है, व्हेन इट इज इन मिडल ऑफ 2 डिफरेंट कार्बन्स, then the phosphate which is connected to this carbon, middle carbon, will be of high energy, इसकी एनर्जी लेवल ज्यादा होगा, तब आप इसको रिलीज करोगे तो एडीपी को दोगे आगे जाके। अगली स्टेप में आप इसको एडीपी को अपना फॉस्फेट देते हुए देखोगे, उसकी तैयारी कर रहा है पहली स्टेप में। So it is just changing the phosphate from here to here so that it becomes high energy phosphate bond, and then nature wants to give this phosphate to again ATP. So 2 molecule of 3 phosphoglycerate will be making 2 molecule of phosphoglycerate, है ना, 2 phosphoglycerate, because थर्ड कार्बन से सेकंड पे शफल कर दिया, उसके लिए आपका म्यूटेस काम आया। क्लियर है? जल्दी से मुझे बताइए प्लीज, क्विकली लेट मी नो। सर एक बार वापस समझाओ, एक बार वापस ये एक बार वापस समझाऊं? ओके ठीक है, देखो क्या किया है यहाँ पे कि ये फॉस्फेट का, ये जो फॉस्फेट है ना वो थर्ड कार्बन पे, देखो 3 फॉस्फेट थर्ड है ये, 1 2 3, इसको जस्ट हटा के यहाँ लगा दिया, देखो अब थर्ड कार्बन पे नहीं है, सेकंड कार्बन पे आ गया। अच्छा उतना ही किया। ये क्यों किया मैंने वो लॉजिक बताया, नेचर ने ये गेम क्यों खेला, क्योंकि सेकंड कार्बन पे जो फॉस्फेट होता है ना वो हाई एनर्जी का होता है जब वो मिडिल कार्बन है, इसलिए किया है। अब आप देखो हाई एनर्जी का करने का फायदा क्या है, अगली स्टेप में ये देखो क्या कर रहा है, ये इसको इनॉल में कन्वर्ट करके और उसके बाद वाली स्टेप में ये फॉस्फेट को रिलीज करा देगा। जस्ट एक इनॉलेज की प्रेजेंस में इसको इनॉल में कन्वर्ट किया। इनॉल क्या होता है केमिस्ट्री की टर्म्स में, ये देखो यहाँ पे आपका ये डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, ये पहले से था, सॉरी ये वाला डबल बॉन्ड जो आपका बना ये इनॉल फॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, खैर इतना डिटेल में आई डोंट थिंक आपको कोई पूछेगा। इनॉलेज आया, इनॉल बना, अब और आपने कार्बन को ऐसा क्रिएट किया यहाँ पे कंडीशन कि यहाँ से फॉस्फेट अब रिलीज करे। ठीक है, क्योंकि इस पे आपने डबल बॉन्ड बना के इसकी वैलेंसी को और आप वो करा रहे हो, इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर प्रेशर बना रहे हो कि ये बंदा अपना फॉस्फेट रिलीज कराए, दैट्स द ओनली पर्पस। अब देखो अगली स्टेप में क्या हो रहा है, ये देखो आपने थर्ड कार्बन से सेकंड कार्बन पे शिफ्ट किया, फिर इनॉल बनवाया डबल बॉन्ड बनवा के, और अब प्रेशर बना के आपने हर फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से फॉस्फेट रिलीज करा दिया, तो आपका बन गया 2 एटीपी। 2 एटीपी रिलीज हुआ और फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट इज कन्वर्टेड टू पाइरुवेट इन प्रेजेंस ऑफ काइनेज, पाइरुवेट का काइनेज, अगेन काइनेज आया तो देखो फॉस्फेट की डील हो रही है। इज इट क्लियर? समझ में आया सबको? यस सर, यस परफेक्ट ना? ठीक है, 9 स्टेप कीजिए, 9 स्टेप करूं, ओके जस्ट मिनट। ये वाली स्टेप कह रहे हैं दिव्यानी, बाकी लोग को सब, हाँ दिव्यानी देख लीजिए क्या डाउट था बताइए। क्लियर? स्क्रीनशॉट लेना आपको। I exceeded your time for the lecture. Please let me know if it is clear. हो गया ना? ठीक है, यस सही है। ठीक है। सो ये फॉस्फोनॉल पाइरुवेट से यहाँ पाइरुवेट बन गया, तो यहाँ पर भी आपने 2 एटीपी बनाए। तो आपने टोटल 2 एटीपी पहले बनाए थे, 2 अभी बनाए, 4 बना दिए, और 2 एटीपी स्टार्टिंग में खर्चे थे, तो आपके 4 एटीपी बने और 2 एटीपी खर्च हुए। समझ में आया? कोई दिक्कत? यहाँ पे स्टेप कर रहा हूँ, अगली क्लास में वी विल बी डिस्कसिंग कि NADH2 कहाँ पे बना, क्या हुआ। अभी सिर्फ मैंने ATP पे फोकस किया है, अगली में NADH2 का, और फिर ओवरऑल अपन कैलकुलेशन करेंगे कितने ATP का फायदा हुआ। ठीक है ना? चलिए, I hope you have learned something new and it was a helpful session. Have a good day. All the very best.
Thank you, Kaushal, Ji, for sparing the time and very, diligently, very effortfully you have explained this entire concept. Although they might have studied these things in 12th, but you have, from evolution point of view, energy dynamics point of view, very nicely you have explained everything. So on behalf of Entrance Exam Preparation Cell, I thank a lot to you, and I think you might need one more session to complete it, or is it over, Kaushal? sir, glycolysis is over, but glycolysis ka calculation, that part is Yeah. remaining. So we will fix up the time for that, so that whenever it suits you. So we will complete this entire pattern, and if you can share some MCQs, so that they can be more aware of all those calculations and the facts. Sure, So sir. then it will be a complete package that way. Sure, sir. I'll explain them one of each kind in the next lecture, and then I'll give Yeah, sort of questions. Then they can solve it. yeah, that will be nice. Okay. So thanks a lot, Kaushal. Thank you, sir, for inviting. Okay, bye. Take Bye. care. Bye. Bye.